नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना में वोटिंग के साथ विधानसभा चुनाव खत्म। राजस्थान में भाजपा, एमपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आसार। गुजरात में आयुर्वेदिक नशीली सिरप की धड़ल्ले से बिक्री, खेड़ा में एक शख्स की मौत। और वडोदरा में करोड़ों के खर्च के बावजूद दूषित पानी की परेशानी कायम। ट्रीटमेंट प्लांट से आता है पीला पानी। देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई गई। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग कराई गई, जो शाम 5 बजे तक चली। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 51.89% मतदान हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद में वोट देने आए 2 बुजुर्ग 78 वर्षीय टोकला गंगम्मा और 65 वर्षीय राजन्ना की मौत हो गई। वोटिंग के दौरान लाइन में खड़ी टोकला गंगम्मा को हार्ट अटैक आया। वहीं लाइन में खड़े राजन्ना चक्कर आने की वजह से गिर गए। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं पोलिंग बूथ में मीडिया से बात करने की वजह से बीआरएस नेता की बेटी कविता के खिलाफ शिकायत करवाई गई। मतदान के दौरान 3 से 4 जगह कांग्रेस से बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ। गुजरात के अहमदाबाद के खेड़ा जिले में आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री का मामला सामने आया है, जिस पर सरकार से लेकर विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सर्दियों के मौसम में आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर अन्य राज्यों से लाकर अल्कोहल और मेथिलीन जैसी जहरीले कंटेंट वाली सिरप धड़ल्ले से बिक रही है, जिससे खेड़ा में मौत का मामला सामने आया है। इस मामले फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर एच.जी. कोशिया ने ठोस कार्यवाही की बात कही है। आयुर्वेदिक दवा जो હોય એના ફક્ત ને ફક્ત ઉત્પાદન માટે જ લાયસન્સની જરૂર છે। મેગા સુધી પણ ગુજરાતમાં આજે લગભગ 900 થી પણ વધારે આયુર્વેદિક દવા ઉત્પાદકો છે। એ લોકો લો બાઇડેડ છે, એક કાયદાની નીચે ગુણવત્તાની દવાઓ બનાવે છે, રાજ્યના નાગરિકોને વેચાણ કરે છે, દેશમાં આપે છે અને નિકાસ પણ કરે છે અને ગુજરાતનું એક સારું નામ પણ છે। પણ મેં કીધું એમ ગુજરાતમાં આવા 5 માણસો પાસ્ટમાં અમારી પાસે આવેલા લેવા માટે, કારણ આનું મિસયુઝ થાય છે, અમારે ધ્યાન આવતા અમે એ લોકોના આજે 800 વરિષ્ઠ કેટેગરી દવા બનાવતા એને પરવાના રદ કરી દીધેલા છે। 2019 આપણે 20માં 21માં 22માં રદ કરી દીધેલા છે। આજે ગુજરાતમાં લગભગ આવું 800 વર્ષ બનાવતો એવું કોઈ પણ કંપનીથી કોઈ હોય તો કે જેનેરિક અને જેન્યુન ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને આવી દવાના સ્ટોરમાં જ વેચતી હોય એવી દવાઓ છે। આમ પાનના ગલ્લે અને કિરાણા સ્ટોરમાં મળતી હોય અને જેનો મિસયુઝ થતો હોય એવી દવાઓ ગુજરાતનો કોઈ બધા બનાવતો નથી કે ત્યાં વેચતો પણ નથી। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने खेड़ा की नशीली आयुर्वेदिक सिरप मामले सरकार का पक्ष पेश किया। આપણા ત્યાં આ પ્રકારનો કોઈ પણ આસવ બનાવવાની ફૂડ અને કોસ્મેટિક એક્ટ હેઠળ કોઈને આપણે પરવાનગી આપી નથી અને જે આપી હતી એને પણ આપણે રદ કરેલી છે। પરંતુ ક્યાંક બહારથી લાવી અને આનું વેચાણ થયેલું હોય એવું માલુમ પડે છે અને સમગ્ર બાબત એ પોલીસ તપાસ હેઠળ છે। नशीली सिरप की गुजरात में बिक्री मामले कांग्रेस के नेता मनीष दोशी, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और बोटाद के विधायक उमेश मकवाणा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सरकार हफ्ताराज અને અસામાજિક તત્વોને આપેલી છૂટના કારણે આજે ગુજરાતમાં યુવાનો ઘરના મોભીઓ આ નશાના પદાર્થોના સેવનથી મોતને ઘાટ જઈ રહ્યા છે। આ સંજોગોની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે સરકાર જે ગૃહ વિભાગ ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે, આવા અસામાજિક તત્વો ઉપર કડકમાં કડક પગલાં પડે તો જ ગુજરાતમાં આ નશાના વેપલા ઉપર રોક લગાશે અને યુવાધનને આપણે બચાવી શકશું। નશાની સિરપમાં અત્યારે 5 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। હજુ પણ વધારે મને લાગે છે કે આંકડો વધી શકે એમ એવી શક્યતાઓ છે। દુઃખની વાત એ છે કે આ નશાની સિરપો જે આયુર્વેદિકના નામે વેચાઈ રહી છે, જો એની તળિયા સુધી તો તપાસ નહીં કરવામાં આવે, કેટલી જગ્યાએ વેચાતી હશે, ક્યાંથી આવે છે, કોણ આને કરે છે, કોણ લાયસન્સ આપે છે અને ક્યાંથી મિક્સ થાય છે, તો આ ખૂબ જ બેકાળજીભર્યું અત્યારે તંત્ર છે। આશા રાખીએ, લોકોને પણ મારી વિનંતી છે કે સ્વયંભૂ આપણે હવે જાગવું પડશે, સ્વયંભૂ આપણે ધ્યાન રાખવી પડશે, બાકી આ સરકાર બેફામ થઈ ગઈ છે। માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં એક માંગણી કરી છે લેખિત કે ગુજરાતના દરેક જિલ્લાઓમાં આવા આયુર્વેદિક સિરપો અલગ અલગ પાનના ગલ્લાઓમાં ઉપર મળી રહ્યા છે, અલગ અલગ પ્રોવિઝન સ્ટોરોમાં મળી રહ્યા છે અને આની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું અંકુશ મૂકવામાં આવ્યું નથી, તો જેના કારણે અનેક જિલ્લાઓમાં આવી ઘટનાઓ બનતી જાય છે
અને યુવાનો નશાના રવાડે ચડતા જાય છે તેની ઉપર તાત્કાલિક અસરથી એની ઉપર રોક લગાવવામાં આવે તેવી હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને માંગણી કરું છું. गुजरात के वडोदरा शहर में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद लाखों लोगों को कॉरपोरेशन द्वारा दूषित पानी पिलाया जा रहा है। दूषित पानी की आपूर्ति गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर में बार बार होती है। लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन दूषित पानी के शुद्धिकरण का कोई ठोस निवारण नहीं हो पाता है। दिवाली से पहले 6 से 7 लाख लोगों को कॉरपोरेशन द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति की गई और सैंपल लेने के बाद बिना रिपोर्ट के पानी को पीने लायक घोषित कर दिया गया था। जीपीसीबी ने भी पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं होने का रिपोर्ट दिया है, लेकिन वीएनएम की टीम ने जब दूषित पानी के मुद्दे का फॉलोअप लिया तब दोड़का में बनाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फ्रेंच वेल में अभी भी पानी का रंग बदला हुआ नजर आया। इस मुद्दे वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी से पूछे जाने पर उन्होंने इस मुद्दे को पुराना बताया, जबकि हकीकत ये है कि अभी भी यहाँ पीला पानी आ रहा है। दरअसल महिसागर नदी से पानी लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर करने के बाद लेबोरेटरी में पानी का टेस्टिंग होता है और फिर वडोदरा शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। आज भी लेबोरेटरी में टेस्टिंग तो किया गया और पानी सामान्य होने की बात भी कही गई, लेकिन जब बाल्टी में भरकर पानी देखा गया तो वो दूषित ही दिख रहा था। विपक्ष नेता अमीरावत ने इस मुद्दे कॉरपोरेशन पर सवाल उठाए हैं। बेसिकली दिवाली के एक वीक पहले से वडोदरा शहर में पीले कलर का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने वहाँ पर सोर्स पे जाके देखा, महिसागर नदी का पानी पूरा पॉल्यूट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉरपोरेशन ने रिपोर्ट दिया कि पानी में थोड़ा बेटरमेंट हुआ है और उसके थर्ड डे कहा कि पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। कुछ भी तब तक नया नहीं किया था, तो पानी साफ़ कैसे हुआ? 1-2 दिन पानी साफ़ भी आया तो हमें लगा कि कहीं से कोई केमिकल पॉल्यूटेंट है, तो पॉल्यूटेंट की वजह से पानी गंदा आ रहा है, इसलिए हमने जो जीपीसीबी की रिपोर्ट है उसको भी चैलेंज किया है। अनफॉर्चुनेटली दिवाली के बाद फिर से जब हम लोगों ने हमें नगरजनों ने बताना शुरू किया कि पानी अभी भी पीला आ रहा है, हमने फिर से महिसागर नदी में देखा तो नदी का पानी अभी भी येलोइश कलर का है। और बिकॉज हमारे वहाँ कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोड़का के सिवा तो है नहीं, तो फाजलपुर रायका वगैरह से तो पीला पानी ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने दोड़का का भी मुलाकात विजिट किया है, पर अभी तो ट्रीटेड वाटर भी येलो है। दैट मीन्स के पानी का जो लेवल है वो पहले से भी बदतर हो गया है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इम्प्रूव्ड। और ये स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास WTP नहीं है, सेकेंडली कॉरपोरेशन के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है कि जहाँ से 6 से 7 लाख नागरिक यहाँ से पानी पीते हैं, उनको और कौन से स्रोत से पानी देंगे, और कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है जहाँ से। और अगर कुछ नया करना भी है तो इट विल टेक टाइम, 2 साल लग जाएगा। हमने तो पिछले कई सालों से डिमांड की है कि WTP बनना चाहिए। अभी भी सिर्फ रायका फ्रेंच वेल पे नया इंटेक वेल बन रहा है और वहाँ पर WTP प्लांट बन रहा है, बट व्हाट अबाउट फाजलपुर एंड दोड़का? आज आपके माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर को, वडोदरा के साथ डिसीजन मेकर्स है, सबको आगाह कर रहे हैं। अगर विद इन अ वीक डिक्लेयर नहीं होता है कि WTP सारे फ्रेंच वेल पे बनेगा तो आई थिंक फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है कि साफ पानी लोगों को देना चाहिए और कॉरपोरेशन की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कुछ दिनों पहले ही जब दूषित पानी का मुद्दा उठा था तब कॉरपोरेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई शुरू करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी पानी दूषित ही आ रहा है। दरअसल इस दूषित पानी की जड़ महिसागर नदी में है, जहां कुछ कंपनियों द्वारा रिवर्स बोरिंग किए गए हैं। यहां कंपनियों द्वारा प्रदूषित पानी बिना फिल्ट्रेशन के छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के पास महिसागर नदी के पानी के सैंपल लेकर टेस्टिंग कराने चाहिए, तभी असली हकीकत उजागर हो पाएगी। वडोदरा के अनगढ़ और सिंदरोट में भी लाल पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में महिसागर नदी में केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देने वाले कंपनी संचालकों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। गुजरात के वडोदरा के कुबेदान फलिया में एसओजी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में एसओजी द्वारा कुबेदान फलिया में डुप्लीकेट ऑयल बनाने की जानकारी मिलने पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में इस्तेमाल में लिया जाता नकली ऑयल बनाया जा रहा था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर कुबेदान फलिया में छापेमारी को अंजाम दिया गया, जिसमें स्टिकर, तेल भरने के डब्बे और अन्य सामग्री समेत का मुद्दा माल जब्त किया गया है।
यहाँ कैस्टर एक्टिव हीरो और क्राइसिस जैसे ब्रांडेड ऑयल को डुप्लीकेट बनाकर तैयार किया जा रहा था। इस मामले एसओजी द्वारा 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डुप्लीकेट ऑयल बनाने के इस रैकेट में कौन कौन शामिल हैं, उसकी जांच एसओजी पुलिस कर रही है। इस रैकेट के निवेशकार से लेकर ऑयल का इस्तेमाल कौन और कहां करता था, उन सारे सवालों के जवाब एसओजी ढूंढ रही है। हाँ जी हाँ जी। गुजरात के अहमदाबाद जिले के खेड़ा में आयुर्वेदिक सिरप पीने से हुई मृत्यु मामले जांच शुरू की गई। ગઈકાલે ના જે બનાવ છે ખેડા જિલ્લા વિસ્તારમાં એમાં કુલ 5 લોકોની દુઃખદ મૃત્યુ થયું છે અને એની તપાસ તાત્કાલિક ખેડા તરફથી અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય તરફથી રેન્જ આજી તરફથી અને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ તરફથી કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે। અત્યારે જે લોકો એમાં ઇન્વોલ્વ છે એની પૂછપરછ ચાલુ છે। અત્યાર સુધીના જે પ્રાથમિક માહિતી આપણને મળી છે એના પરથી એસપી ખેડા તરફથી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે પ્રાથમિક માહિતી મારી પાસે છે એ મુજબ એક આયુર્વેદિક દવા છે અને એ આયુર્વેદિક દવા એક કિશોર નામનો એક વ્યક્તિ છે એ વેચાણ કરતા હતા અને એમને પોતે કે 50 થી 55 લોકોને આ દવા આપી હતી અને એ દવા બેસિકલી કફ સિરપ કે ટોનિક જેવું છે આયુર્વેદિક। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलिशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस, सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। तेलंगाना में 30 नवंबर मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पहले तक इस पर चर्चा होगी। कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित होते हैं, लेकिन क्या है एग्जिट पोल? किस प्रकार से अंदेशा लगाया जाता है कि किसका पलड़ा भारी है? आज इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब के बारे में। सबसे पहले जानिए क्या होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे की तरह होता है, जिसे अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की टीम अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद होती है और वोट डालकर बाहर आए लोगों से जानती है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इस तरह टोटल डेटा को जुटाकर एक एनालिसिस किया जाता है कि किसे कितने सीट मिल सकती है। अब जानते हैं कि कितने चरणों में पूरी होती है ये पूरी प्रक्रिया। भारत में एग्जिट पोल विभिन्न संगठनों के जरिए किए जाते हैं। इनमें समाचार मीडिया, निजी सर्वेक्षणकर्ता और एजुकेशन इंस्टीट्यूट शामिल हैं। एग्जिट पोल आमतौर पर कई चरणों में पूरा होता है, जैसे कि सैंपल का सिलेक्शन। किसी भी एग्जिट पोल के लिए पहला स्टेप वोटर्स के वर्ग का चयन होता है। इसमें वोट डालकर निकले कई लोगों से बात की जाती है और उसे उस वर्ग का सैंपल माना जाता है। वोटर्स की कैटेगरी का चयन एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर चुना जाता है।
उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में टीम ने अलग अलग वर्ग के 100 लोगों से बात की और उस सैंपल को उस खास वर्ग का डेटा मान लिया जाता है। सैंपलिंग प्रक्रिया। एग्जिट पोल में अलग अलग सैंपलिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रैंडम यानी अचानक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी स्तरीकृत सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में अचानक से किसी भी वोटर से बात की जाती है, ये किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। वहीं स्तरीकृत सैंपलिंग में अलग अलग उप समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश होती है। इन दोनों से अलग सिस्टमैटिक सैंपलिंग में वोटर लिस्ट से बीच बीच में मतदाताओं का चयन करके सवाल पूछा जाता है। इंटरव्यू लेने वाला या सवाल पूछने वाले की ट्रेनिंग। एग्जिट पोल के लिए फील्ड पर उतरने से पहले सवाल पूछने वाले को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत उन्हें सिखाया जाता है कि वे कैसे मतदाताओं से विनम्रता पूर्वक संपर्क करेंगे और एग्जिट पोल के उद्देश्य को समझाते हुए तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से सवाल पूछेंगे। डेटा कलेक्शन। एग्जिट पोल का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें सवाल पूछने वाला वोट डालकर निकले मतदाताओं से तुरंत बात करता है और उनसे पूछता है कि किसे वोट दिया, क्यों वोट दिया, उस वोटर की राजनीतिक प्राथमिकता क्या थी। डेटा एंट्री और क्लीनिंग। जब एग्जिट पोल के लिए इंटरव्यू लेने वाली टीम वोटर से बात करके डेटा ले आती है तो उस डेटा को एक डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। इसके बाद अगर उस डेटा में कोई कमी दिखती है तो उसे सही किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि कोई डेटा मिस तो नहीं है, किसी में कोई कमी तो नहीं है। डेटा विश्लेषण। एग्जिट पोल के इस आखिरी चरण में प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार की वोट शेयर का अनुमान लगाने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद फाइनल सैंपल को उस वर्ग का प्रतिनिधि मानकर निचोड़ निकाला जाता है। गुजरात का वडोदरा शहर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक सयाजी बाग, जिसकी देखभाल अब वडोदरा कॉर्पोरेशन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पक्षियों और प्राणियों की देखभाल में कमी देखने मिल रही है। फिलहाल मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मगरमच्छ के लिए बनाया गया पूरा एक पिंजरा है, लेकिन मगरमच्छ जहाँ रह रहे हैं वो पूरा काई से भरा पड़ा है। यहाँ जो पत्थर है वो भी काई में लबरेज दिख रहे हैं और पानी जो है वो पानी के कलर की बजाय हरा हरा दिख रहा है और ऐसी ही काई में मगरमच्छ रहने के लिए मजबूर है। आप देख पा रहे हैं मगरमच्छ भी कैमरे में कैद हो रहे हैं कि इसी तरीके काई के पानी में मगरमच्छ रह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मगरमच्छ के लिए जो कुंड बनाया गया है उसमें जो पत्थर है वो भी कदर काई से लबरेज हैं कि वो पत्थर भी अपना ओरिजिनल कलर गंवा चुके हैं और हरे रंग के हो गए हैं। ना सिर्फ पत्थर, मगरमच्छ आप देखिए वो भी हरे रंग का हो गया है और काई से लबरेज है। एक नल है जिस पर पानी टपक रहा है और मगरमच्छ जो है अपने आप को नहाकर थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए टपक रहे पानी के नीचे मगरमच्छ काई को धो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काई उनके शरीर पर किस कदर जम गई है कि उन्हें भी शायद कोई ना कोई तरह की दिक्कत आती भी होगी। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो काई खाते हैं और वो इन मगरमच्छ को परेशान भी कर सकते हैं और इसीलिए मगरमच्छ अपनी काई धोने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। वडोदरा के सयाजी बाग में कई पशु पक्षियों के लिए पानी के कुंड बनाए गए हैं और पानी के कुंड में काई जम गई होने की खबरें उजागर हुई है और उसी पर हम जवाब लेंगे जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर सर से कि आखिरकार क्या वजह है जो सारे ही पशु पक्षियों के जो पानी के कुंड है उसमें काई जमी हुई है। सर, ये काई है क्या पशु पक्षियों को नुकसान नहीं करती है? जो काई जमती है, मैं आपको यही प्रश्न करूँगा कि जैसे आप इनका कुदरती प्राकृतिक आवास देखें, बाहर जो नदी, जलाशय, तालाब, कुंड वगैरह है उसमें भी काई जमती है। बेसिकली काई जो है इन जलचर पक्षियों, प्राणी पक्षियों का प्राकृतिक आवास का एक हिस्सा है। काई, हाँ, जो जू के अंदर का जो कंट्रोल्ड वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हमने बनाई है, वी कॉल इट मैन मेड वाटर बॉडीज़, तो इसके अंदर इस काई की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़े नहीं या ज़रूरत से ज़्यादा वो ये ना करे, उसका नियंत्रण करना डेफिनेटली हमारे मैनेजमेंट का एक भाग है और हम उसे मैनेज करते रहते हैं। जैसे विंटर सीज़न में हम लोग फ्रिक्वेंटली पॉन्ड्स खाली करते हैं, बिकॉज जलचर प्राणियों को ज़्यादा टाइम पानी से वंचित रखना भी ज़रूरी नहीं है, योग्य नहीं है। इसलिए जो आप हमारा जो एवियरी देखेंगे तो उसके अंदर हमने अलग अलग पॉन्ड इसीलिए बनाए कि जब 1 by 1 टर्न बाय टर्न हर वाटर बॉडी का क्लीनिंग हो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे
टोटली उसको पानी ही ना मिले। तो जो छोटी वाटर बॉडीज़ है वो तो हम हफ्ते 10 दिन में एक बार उसको पूरा क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्वांटम ऑफ वाटर भी कम लगता है। बड़ी वाटर बॉडी को हम थोड़ा सा ज़्यादा हमें टाइम देना भी पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर एक लिविंग इकोसिस्टम है, एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला है। जैसे कि पानी के अंदर काई होती है, काफ़ी सारी काई की वैरायटी पक्षी खुद खाते हैं, काफ़ी काई के ऊपर मछलियाँ उसको खाती है और मछलियों को पक्षी खाते हैं। तो एक नेचुरल एक फूड चेन, एक आहार श्रृंखला का एक निर्माण होता है इसके अंदर। तो काई जो है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जब वो बढ़नी नहीं चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले कई महीनों से हमने 2-3 अलग अलग डिसइंफेक्टेंट्स ट्राई किए हैं कि जो काई की ग्रोथ को नियंत्रित करे और एक हद से ज़्यादा उसे बढ़ने ना दे। हालांकि विंटर में हम पूरा हौज खाली कर, जैसे मगर पॉन्ड्स की बात करें, तालाबों की बात करें, तो अब विंटर में अगर हम उसके पूरा, अब तापमान काफ़ी ठंडक रहने लगी है, अगर हम पूरा पॉन्ड खाली कर दें और 2-1 दिन तक मानिए मगर को जितना पानी नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हम पूरा पॉन्ड लास्ट वीक में ही हमने हमारा घड़ियाल मगर का जो पॉन्ड था वो हमने पूरा क्लीन किया है। अभी इस वीक में हमारा हमारे जो देसी मगर है, जो क्रोकोडाइल, मार्श क्रोकोडाइल कहते हैं, उसका हमारा प्लानिंग है। तो इसका पूरा साल भर का हमारा शेड्यूल रहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वाटर कब कौन सी वाटर बॉडी किस साइकिल में क्लीन करनी है। एंड अगेन मैं वही कहूँगा कि काई जो है इन जानवरों के प्राकृतिक आवास का एक भाग है और वो सर्टेन लेवल में उनके लिए ज़रूरी भी है। यानी सफाई का कोई दिक्कत नहीं, सफाई आराम से हो रही है। हम कर रहे हैं सफाई, उसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इस काई की वजह से किसी प्राणी या पक्षी को कोई बीमारी हुई हो, ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज ये उनका नेचुरल हैबिटेट है। जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन जो मंजर देखा वो वाकई में मगरमच्छ के लिए भी शायद ये जानलेवा हो सकता है। इस तरीके की काई में ही रह रहे हैं, शायद ये कई दिनों से ये कुंड जो है वो साफ ही नहीं हुआ है और इसलिए अब मगरमच्छ भी नीले रंग के हो गए हैं। शिवजी ने जहर पिया था और उनका कंठ जो है नीला हो गया था, लेकिन ये मगरमच्छ किसकी सज़ा भुगत रहे हैं ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस तरीके की तस्वीरें वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित ये गार्डन, जहां लापरवाही की इस कदर मिसाल देखी जा रही है कि मगरमच्छ जो है काई वाले पानी में रहने के लिए मजबूर हैं और अब मगरमच्छ भी हरे रंग में तब्दील हो गए हैं। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वियतनाम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के छायापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा स्वागत किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का 3 दिन पहले प्रारंभ किया गया है। ये यात्रा वार्ड नंबर 1 के छायापुरी स्लम इलाके में पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत केंद्रीय मत्स्य उद्योग, डेयरी और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री और विधायकों द्वारा रथ का कुमकुम तिलक कर किया गया। इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर उनका लाभ लेने का अनुरोध जनता से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीए आ आखी भारत विकास संकल्प यात्रा जे योजी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, एनी पाछळनो मुख्य हेतु हवे आ योजनानुं सेच्युरेशन, एने 100% लाभार्थीओने मळवा पात्र लाभो मळे एने माटे जन आंदोलन ऊभुं थाय, लोको स्वयं एमां भाग ले अने एनो लाभ एने पहोंचाडवा माटेनो एक प्रयास करवानो छे। लोकोनी अवेरनेस आवे, जागृति आवे અને એને કારણે 2047માં જે ભારતને વિકસિત બનાવવાનો આપણો સંકલ્પ છે એ દરેક નાગરિકનો સંકલ્પ બને અને એમાં દરેક નાગરિક પ્રયાસ કરવા માટે કટિબદ્ધ થાય, એ મૂળ આ યાત્રાનો હેતુ છે। એની અંદર ખૂબ સારો લોક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। મહિલાઓ, યુવાનો એમાં ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે। અમને એવી શ્રદ્ધા બેસી રહી છે કે આ યોજના અને આ યાત્રા સફળ યાત્રાના સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણ થશે। ગુજરાત સરકારે મારી જાણકારી પ્રમાણે આ કમોસમી વરસાદને કારણે રાજ્યના ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે કરવા માટેના સૂચનો અને આદેશો આપી દીધેલા છે। મારી પ્રાથમિક માહિતી પ્રમાણે એ કામ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે અને એનો સર્વે મળ્યા પછી રાજ્ય સરકાર એની નુકસાનીના પ્રમાણમાં એને વળતર આપવા માટેનો ચોક્કસ પ્રયાસ કરશે।
गुजरात के वडोदरा शहर में दीपावली के वैकेशन के बाद आज से द्वितीय सत्र का प्रारंभ हो गया है। गुजरात के वडोदरा में दीपावली के लंबे वैकेशन के बाद द्वितीय सत्र का प्रारंभ हो गया है। द्वितीय सत्र में लंबी छुट्टियों के बाद नए जोश के साथ आए बच्चों के आगमन से बच्चों की खिलखिलाहट स्कूल में गूंज उठी। छुट्टियों के बाद पहला दिन होने के चलते कुछ क्लास में बच्चे कम दिखाई दिए। वहीं बढ़ती सर्दियों का इन बच्चों पर असर दिखाई दिया। छुट्टियों का आनंद लेने के बाद ये बच्चे फिर से पढ़ाई में जुट गए हैं। आज 30 नवंबर से हमारी स्कूल वापस, हमारा जो सेकंड टर्म है, जो हमारा 23-24 का जो शैक्षणिक सत्र है, जिसपे ये सेकंड टर्म हमारी आज से शुरू हुई है। सब हमारे प्ले सेंटर से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आज से शुरू हुए हैं। स्कूल वापस हमारी भर गई है और फिर से एक बार वही धमधमाट शुरू हो गया है। अभी यही महीने में हमें काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी है, काफ़ी अभी एग्ज़ाम का भी नया शेड्यूल आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली हमारे स्टाफ मेंबर के साथ वही प्लानिंग करके ट्रस्ट के साथ में रखते हुए पूरा प्लान किया हुआ है और उसको हम फॉलो करेंगे। गुजरात के सूरत के सचिन GIDC इलाके में स्थित एथर इंडस्ट्री में आग लग जाने की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के सूरत की सचिन GIDC में कार्यरत एथर कंपनी में कल भीषण आग लग गई थी, जिसमें स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट से 20 कर्मचारी झुलस गए थे। इन सभी को फौरन इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले पुलिस ने जांच भी शुरू की थी। पुलिस के उच्च अधिकारियों, कलेक्टर और FSL की सहायता से कंपनी से 6 जितने शवों को ढूंढ निकाला गया है, जबकि एक लापता कर्मचारी को अभी भी खोजा जा रहा है। मलबा ज्यादा होने की वजह से कंपनी में स्टेबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। બનાવના દિવસે રાત્રે જે કર્મચારીઓ અને લેબર વર્ગ કામ પર હતા એમનું પૂરું લિસ્ટ છે, લિસ્ટ સાથે ટેલી કરતા, ઇન્જર થયેલા વ્યક્તિઓ સાથે ટેલી કરતા કંપનીઓ તરફથી અમને એવો મેસેજ આપ્યો છે, અમને એવી હકીકત આપી છે કે આ 7 વ્યક્તિ મિસિંગ છે। એના નામ જોગ માહિતી પણ આપ સૌને મીડિયામાં ગઈકાલે આપવામાં આવેલી છે। એ 7 વ્યક્તિઓ કોણ કોણ મિસિંગ છે એ માટે આજરોજ अलग अलग डिपार्टमेंटની ટીમ, FSL, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सब लोगों के साथ आज सर्च ऑपरेशन किया। तो इसमें से 7 डेड बॉडी मળી છે અને આ 7 डेड बॉडी જે છે અનઆઇડેન્ટિફાઈ છે, કારણ કે મોટાભાગની સળગી ગયેલી છે। આપ માનો તો ખાલી હાડ પિંજર જેવું જ છે। આ બાબતે અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને તમામનું PM થયા બાદ DNA સેમ્પલો લેવામાં આવશે અને સેમ્પલો FSLમાં મોકલી એમના પરિવારજનોનો પણ સંપર્ક કરેલો છે અને સેમ્પલો મેળવી DNA ટેસ્ટિंग કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा के दक्षिण जोन तरसाली आदर्श नगर से रूपारेल कांस की ओर बरसाती ड्रेनेज पाइपलाइन डालने का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा के दक्षिण जोन तरसाली आदर्श नगर से रूपारेल कांस की ओर जाने के मार्ग पर लगभग 4,82,95,000 के खर्च से बरसाती गटर डालने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसका भूमि पूजन किया गया। यहाँ 2,850 मीटर लंबी RCC पाइप डाली जाएगी। मुख्यमंत्री शहर विकास योजना वर्ष 2023 के अंतर्गत ग्रांट मिली है। 7 महीने में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। भूमि पूजन के मौके पर विधायक योगेश पटेल, कॉर्पोरेटर घनश्याम पटेल और मेयर पिंकी सोनी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा रीडेवलपमेंट की मांग की गई। यहाँ के लोगों ने विधायक और मेयर समक्ष अपनी समस्या रखी। જે પાઇપલાઇનનો કામગીરી જે મંજૂર થઈ છે વરસાદી માટે 100 મિલીમીટર અને 1400 મિલીમીટર 4.5 કરોડનું આશરે કામ છે। આનાથી આ વિસ્તારમાં જે ચોમાસામાં પાણી ભરાતું એ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવશે અને ચોમાસામાં ઘરોમાં પણ પાણી ભરાતું અને ટૂંક સમયમાં કામ ચાલુ થશે અને 7 મહિનામાં એટલે આવતા ચોમાસા પહેલાં આ કામગીરી પૂરી થાય। આજરોજ માંજલપુર વિધાનસભામાં સમાવિષ્ટ દક્ષિણ ઝોનના તરસાલી આદર્શનગરથી રૂપારેલ કાંસ તરફ વરસાદી ગટર નાખવાની કામગીરીનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। લગભગ 4.5 કરોડનું બજેટ છે અને આ લાઈન નાખવાથી આ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો અંત આવશે અને લોકોને એક પાણી ભરાવાની સમસ્યામાંથી કાયમી મુક્તિ મળશે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास।
इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा में फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और जीवन सुरक्षा साधन न होने पर कार्यवाही की गई। गुजरात के वडोदरा में शहर की व्यावसायिक बहुमंजिला इमारतों में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और जीवन सुरक्षा साधनों के नहीं होने पर फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते जतलपुर रोड पर स्थित कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम को सील कर लाइट कनेक्शन काटा गया। साथ ही अल्फा कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल को भी सील किया गया है और लाइट कनेक्शन भी काटा गया। 2 महीने पहले ही कल्याण ज्वेलर्स और अल्फा कॉम्प्लेक्स को नोटिस दिया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा शहर की 140 लो राइज कमर्शियल बिल्डिंग को नोटिस दी गई है, जिसमें से अब तक कुल 18 बिल्डिंग। गुजरात के वडोदरा के समासावली कैनाल में युवक के डूबने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के खोड़िया नगर में रहता 18 वर्षीय योगेश गोपाल समा कैनाल में हाथ पांव धोने के दौरान कैनाल में डूब गया। इस युवक को उसके दोस्तों द्वारा बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पानी का वेग अधिक होने से कोशिश नाकामयाब रही। योगेश गोपाल मजदूरी के लिए दाहोद से वडोदरा आया था। फायर ब्रिगेड को जानकारी देने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अभी तक युवक को ढूंढने में सफलता हासिल नहीं हुई है। खोजबीन जारी है। नावा आया ने अंदर पग लपसी गयो ने ते पड़ी गयो ते अमे बसावा दौड़्या पण पछी अंदर जतो रे पछी अमारथी नहीं निकळ्यो एम। अमे 3 जण आवे अमे निकળી गेला नाय नहीं पछी भाई पाछळथी अमे ઊભા था ने पग लपसी गयो ने એટલે अंदर ओलू लाळ बजली हती ने एमां अंदर जतो रे पछी पकड़वालो भाई दौड़्यो पण पछी नहीं पकड़ायो एम। पेला भाईने पकड़ी लीधो फेर। प्राथमिक माहिती મળતી माहिती अनुसार योगेशभाई नीनामा જે વ્યક્તિ ડૂબેલ છે 17 વર્ષનો છોકરો છે એ અહીંયા હાથ પગ મોઢું ધોવા સવારમાં આવેલો હતો અને એના પેલા ઉપર તે અહીંયા ડૂબી ગયેલો હતો અને એની માટે અત્યારે અમારી ટીમ શોધખોળ કરી રહી છે। હજુ હાલ કોઈ પતો लाग्यो નથી એનો કંઈ। गुजरात के भावनगर मार्केटिंग यार्ड में प्याज की आवक नहीं हो रही है। इस वजह से प्याज के दाम आसमान को छू रहे हैं। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में लाल प्याज 200 रुपए से 875 रुपए तक के दाम पर किसानों से ली जा रही है, लेकिन अभी प्याज की आवक ना के बराबर है। प्याज की बड़ी मात्रा में आवक होती है तब प्याज के दाम गिर जाते हैं, जिसके चलते किसानों में भारी रोष है। अगर किसानों को आर्थिक के तौर पर मजबूत रखना हो तो नीलामी के समय ही दामों का यथावत रखा जाना चाहिए। ऐसी मांग किसानों द्वारा की जा रही है। गुजरात के भावनगर में होलसेल व्यापारी द्वारा स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दावा पेश किया गया। गुजरात के भावनगर में महादेव ट्रेडिंग के होलसेल व्यापारी नरेश आगीचा द्वारा जीएसटी विभाग के कमिश्नर सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दावा पेश किया है। जीएसटी के अधिकारियों द्वारा नियमों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। चेकिंग के लिए आए अधिकारी कर्मचारियों से मोबाइल जब्त करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं।
जिसके चलते कोर्ट द्वारा अधिकारियों को 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का फरमान जारी किया गया है। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा वार्ड नंबर 16 में चंद्रकांत श्रीवास्तव के निवास स्थान पर आगामी दिनों में होने वाले इलेक्शन को लेकर वार्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा शहर कांग्रेस प्रभारी भार्गव ठक्कर, शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी, विपक्ष नेता अमीरावत, पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, प्रदेश प्रभारी भीखाभाई रबारी, महिला शहर प्रमुख फाल्गुनी सोडा, कॉर्पोरेटर और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर जनता दल के 5 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का खेस धारण कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आज मारा वोर्डनी अंदर जनता पक्षमांथी 8 जन कांग्रेस पार्टी में जोड़ाई रह्या छे। आवावाळा वखतनी अंदर अमे धीमे धीमे आगळ कदम वधारीशुं। लोको अमारी जोड़े जोड़ाय, कांग्रेसनी जे विचारधारा छे एने वाचा आपे, एने समझे कि आ देशने कई दिशा में आ लोको लई गया छे અને કોંગ્રેસ પાર્ટી કઈ દિશામાં ફરીથી લાવવા માંગે છે। અમે ગમે તેવા સંજોગોની અંદર પણ આ કાર્યકર્તાઓની મિટિંગની અંદર આ સંવિધાનનું અપમાન બી નહીં થવા દઈએ અને સંવિધાનની અંદર જે રીતે આ લોકોને ભાગલા પાડી રહ્યા છે એ ભાગલાવાળી નીતિને પણ ખતમ કરવા માટે તમામ કાર્યકર્તાઓ ભેગા થઈને, ચાહે અમારા પ્રમુખ હોય, અમારા પ્રભારી હોય, અમારા વિરોધ પક્ષના નેતા હોય, અમારા એસોસિએશનના ચેરમેન હોય, ચાહે અમારા કોર્પોરેટર હોય, ચાહે કાર્યકર્તા હોય, ચાહે અમારા ભીખાભાઈ હોય, ત્યારે ભેગા મળીને આ પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે, પાર્ટી આજે પણ મજબૂત છે પણ ગુમરાહ કરીને જે રીતે લોકોને વેરવિખેર કરવાનો જે પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે એને ફરીથી જોડવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી સજ્જ થઈને બહાર નીકળી છે અને લોકોને જોડીને આ કોંગ્રેસની અંદર આ દેશની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીનો ઝંડો લહેરાય। અમે વોર્ડ સુધી, વોર્ડની અંદર જઈને વોર્ડના અમારા આગેવાનોને મળીને, કાર્યકર્તાઓને મળીને શું તકલીફ છે, શું મુશ્કેલીઓ છે અને લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચવું અને લોકોને કઈ રીતે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારથી કંટાળેલા છે, એમની વાત સાંભળી, એમની વાતને વાચા આપી, એમના પ્રશ્નોનો સોલ્વ કરવા માટે જરૂર પડે તો સરકાર સામે આંદોલન કરવું, કઈ રીતે કરવું અને એમને કઈ રીતે જે બોર્ડર લાઇન પર બેઠેલા લોકો જે છે કે જે લોકોને ખરેખર કોંગ્રેસને વોટ આપવો છે પણ કેમ ભાજપને ને કેમ કોંગ્રેસને, આખી આ વાતની થીમ સમજાવવા માટે અને ચૂંટણીમાં કાર્યકર્તાઓને એક્ટિવ કરવા માટે હાથ से हाथ जोड़ो। અમારા રાહુલ ગાંધીજીએ જે 4000 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી, તો અમારા કાર્યકરો આજુબાજુના 3-4 કિલોમીટરના રેડિયસમાં જઈ અને લોકોને એક્ટિવ કરે, કાર્યકર્તાઓને એક્ટિવ કરે, એના માટે ચર્ચા માટે અમે આ મીટિંગ ગોઠવી છે। गुजरात के वडोदरा शहर की पहचान समान सयाजीबाग जू अपनी पहचान गंवा रहा है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जू के रीडेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में सन 1879 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कमाटी बाग बनाया था और वडोदरा शहर के लोगों को एक अनमोल भेंट दी थी। तब से आज तक यहाँ लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं, यहाँ देखते हैं और इस जू का लुत्फ उठाते हैं। वडोदरा शहर में वैसे घूमने फिरने लायक जगहों की काफ़ी कमी है। अगर कोई यहाँ आए तो एक कमाटी बाग अट्रैक्शन हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन अब लोग कमाटी बाग में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ वही पुराने जानवर हैं, वही पुराने पिंजरे हैं जिसे देख देख कर लोग परेशान हो गए हैं, ऊब चुके हैं। यहाँ कुछ नया देखने नहीं मिल रहा था और इसलिए सैलानियों की संख्या में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। लोग यहाँ आना कम पसंद कर रहे थे। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका ने जू डेवलपमेंट के नाम पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वडोदरा के कमाटी बाग में ये एक नया रीडेवलपमेंट किया गया है जहां वन्य पशुओं को कुदरती माहौल में रहने की एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसे मोट एनक्लोजर कहा जाता है और यहाँ वो खुले में घूम सकते हैं। वाटर बॉडीज़ बनाई गई है। जंगल में जिस तरीके का माहौल होता है कुछ ऐसा माहौल यहाँ पैदा करने की, बनाने की, उन्हें मुहैया कराने की कोशिश की गई है ताकि उनके नेचुरल हैबिटेट में वो रहने का आनंद ले सके। गुजरात
गुजरात के वडोदरा शहर को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक अद्भुत भेंट दी है और उसी भेंट के साथ हम बड़े हुए हैं। वडोदरा में रहने वाला हर शख्स तो कमाटी बाग अमूमन आया ही है। कमाटी बाग देख देख कर ही हम बड़े हुए हैं और कमाटी बाग के जो अलग अलग प्राणी है, पक्षी है, वो भी हमारे साथ दिल से जुड़े हुए, क्योंकि हमने हज़ारों बार कमाटी बाग की विजिट की है। कमाटी बाग का स्वरूप अब बदलने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। बजट में अलग अलग प्रोजेक्ट रखकर उस पर काम किया जा रहा है ताकि वडोदरा का ये जो एक ऐतिहासिक बाग है उसे एक नए स्वरूप में सैलानियों तक पहुंचाया जा सके। पूरी कोशिश की जा रही है और कोशिश कितने हद तक कामयाब रही है ये हम वडोदरा महानगर पालिका संचालित कमाटी बाग के जू के क्यूरेटर प्रत्युष पाटनकर से पूछेंगे। सर, क्या नए प्रोजेक्ट इस बार बजट में लिए गए थे और कितना काम हुआ है उस पर? महाराजा सयाजीराव जो वडोदरा नगरी के दीर्घदृष्टा महाराजा थे, उनकी ये एक अमूल्य देन है वडोदरा शहर और उनके जो चहीते नागरिकों के लिए। ये सयाजी बाग, जिसको हमने कमाटी बाग जिस नाम से आज भी प्रचलित है, लेकिन जिसे हमने महाराजा साहब के ऑनर में हमने इसे श्री सयाजी बाग का नाम दिया हुआ है। तो ये श्री सयाजी बाग कैंपस के अंदर जो श्री सयाजी बाग चिड़ियाघर प्राणी संग्रहालय है, ये प्राणी संग्रहालय 143 साल 143 ईयर ओल्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है। अगले साल हम इसको जस्ट जनवरी में हम इसको 144 ईयर कंप्लीट करेंगे। ऐसा हमारा ये इतना ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन को हम महाराजा साहब की जो दी हुई देन है उसको रखते हुए, उनकी झांकियों को रखते हुए इसका हम नवीनीकरण कर रहे हैं, पूरा हम इसको रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। बिकॉज 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक बॉडी है जो पूरे भारत देश के जूस की रेगुलेटरी बॉडी है, उसके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने जू डेवलपमेंट 2017 से शुरू किया। 2017-18 साल से जब हमने जू डेवलपमेंट शुरू किया, आज तक उसके 2 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। पहला फ़ेज़ जो है, उस फेज़ में हमने जू के जो बड़े मांसाहारी जानवर है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, जे शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, उनके लिए मोट एनक्लोजर्स हमने बनाए हैं और वो प्रोजेक्ट हमारा 2020 में ख़त्म हुआ। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कमाटी बाग में वॉक इन एवियरी का करीब 14-15 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया था और पक्षियों को भी नेचुरल हैबिटेट में रखने की एक कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ भी पक्षियों की कमी कहीं ना कहीं खलती है। जो पक्षी रह रहे हैं उनके लिए जो पानी के कुंड है वो काय से भरे पड़े हैं। पक्षियों को यहाँ ज़्यादा शायद लाना होगा, तभी सैलानियों को ज़्यादा आकर्षित करने में सहायता मिल पाएगी। 2018-19 में हमारा पक्षी घर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि श्री सयाजी बाग जू जो है वो अपने पक्षियों के कलेक्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। खास करके अलग अलग तरह के विदेशी पक्षी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में थे और बहुत अच्छी तरह से वो प्रजनन भी कर रहे थे। आज हमने इस जू को उस तरह से बनाया है कि हमारी जो वॉक इन एवियरी है और जो पूरा एवियरी प्रोजेक्ट है उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने पिछले साल इनोवेशंस इन जू डिज़ाइनिंग में उसको रिकग्नाइज़ किया कि बहुत ही बढ़िया उम्दा डिज़ाइन के साथ ये एवियरी को बनाया गया है। आज वापस से बड़ौदा जू ने अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस रीगेन किया है। बहुत ही अच्छी संख्या में, बहुत ही अच्छी मात्रा में हमने काफ़ी सारे पक्षियों को वापस लाने में हम सफल हुए हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुआ। पक्षी घर का प्रोजेक्ट हम फ़ेज़ 1 ही अभी कंप्लीट कर पाए हैं। आते फेज़ में हम और भी नए वैरायटी के बर्ड्स लाने का हमारा प्लानिंग है और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय म्यूनसिपल कमिश्नर सर और तमाम माननीय पदाधिकारी श्री इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल की ग्रांट में हमने बड़ौदा जू में पहले से आज तक कभी सर्पेंटेरियम नहीं था। सर्पों के लिए, सांप जो लोगों को देखना काफ़ी पसंद है, इसलिए क्योंकि सांपों को लेकर समाज में बहुत कुतूहलता होती है, बहुत लोगों को उसके बारे में काफ़ी जानने की जिज्ञासा होती है, इसीलिए रेप्टाइल हाउस प्रपोज किया गया है। एक उदबिलाऊ जिसे कहते हैं ऑटर, उसका इंक्लोजर प्रपोज किया गया है। और दूसरा जो है, आप जैसे जानते हैं कि सयाजी बाग, जो पूरा सयाजी बाग विस्तार है उसके बीच में से विश्वामित्री नदी पसार होती है। तो विश्वामित्री नदी
जो एक सर्पाकार इस पूरी जगह से जाती है, कई जगह पे इस नदी की वजह से जब बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण होती है तो ज़ू को प्रोटेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत लैंड इरोजन हुआ है, थोड़ा बहुत ज़मीन का धुआं हुआ है, उस जगह पे हम प्रोटेक्शन वॉल्स बनाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हो जाए। 2005 में जब फ्लड आया था तो जो ज़ू का टाइगर सेक्शन था वहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल करी गई थी और वो आज भी इतनी ही अच्छी तरह से सक्षम खड़ी है कि वो पूरा सेक्शन प्रोटेक्ट हो गया। उसी तरह से जो दूसरे 2-4 वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि मेन ज़ू का जो एरिया है वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहे और फ्लड मिटिगेशन में हमें काफ़ी हेल्प रहे। सयाजीबाग में वैसे तो रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं, लेकिन सैलानियों का आंकड़ा क्या कहता है आने वाले सालों में जैसे जैसे विकास हुआ है? वैसे एक पीरियड ऐसा भी आया था जब कमाटी बाग में आने वाले सैलानियों की संख्या कम हुई थी और इसलिए वडोदरा के इस ज़ू के रीडेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए गए। सर, एक वक्त ऐसा भी था जब ऐसा था कि अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कमाटी बाग में, अब वहाँ से निकलकर आप इसे नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैलानियों की संख्या के बारे में अगर हमें कुछ बता पाएँ, क्या अब लोग कम आते हैं पहले के मुकाबले? लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कोविड के पहले करीब 7.5 लाख जितना सालाना फुटफॉल था, अब वो फुटफॉल बढ़ के 10 लाख के करीब पहुंच चुका है। हमें रोज़ का डेली हमें इसका टिकट में से हमें नंबर मिल जाता है कि कितने बच्चे, कितने बड़े लोगों ने ज़ू की आज मुलाकात ली, कितनी स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक टाइम फिक्स रहता है, दिवाली के बाद जो विंटर सीज़न है वो स्कूल ट्रिप्स के लिए बहुत ही आइडियल रहता है और दिवाली के बाद तुरंत दिवाली से लेके फरवरी के महीने तक स्कूल ट्रिप्स बहुत ही बड़ी संख्या में आती है। इस बार दिवाली के दौरान भी हमें बहुत अच्छा फुटफॉल मिला है। ऑलमोस्ट जो मेन फेस्टिवल का 1 हफ्ता का टाइम था उसमें हर दिन की जो रेवेन्यू हमारी 3 लाख के ऊपर हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड रेवेन्यू आई विल से। तो जो हमारा जो फुटफॉल है वो काफ़ी बढ़ा है और जैसे ही ये नया प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ, हालांकि तब थोड़ा सा हम कोविड के ट्रांजिशन फेज़ में थे, लेकिन उस बीच भी जब भी माननीय सरकार की तरफ से जब छूट छाट दी जाती थी और लोग पब्लिक प्लेसेस विजिट करने लगे थे, तो नए फर्स्ट ही प्रोजेक्ट को जो मैंने बताया आपको, तो देख के ही लोगों का बहुत ही अच्छा कमेंट्स और बहुत अच्छे रिमार्क्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले। तो लोगों ने जो है हमारे डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से सराहा है और काफ़ी लोगों को पसंद आया और अब लोगों को एक जिज्ञासा है कि अब ज़ू में नया क्या आएगा। मुझे भी यही पूछना था कि अब नया क्या ला रहे हैं, क्योंकि पशु पक्षी को एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं और उसके बाद बच्चे कुछ नया देखना चाहते हैं। तो जंगल सफारी भी अब हमारे आसपास हो गया है। कुछ नया वडोदरा शहर को, वडोदरा के कमाटी बाग के ज़ू को मिलने की कोई संभावना आने वाले वक्त में? जी, ज़ू में तो नए प्रोजेक्ट्स हमारे फुल प्लान्ड है, करीब 7-8 फेज़ तक का डेवलपमेंट हम प्लान करके बैठे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले आजवा हम लोग एक सफारी पार्क बनाने के प्लानिंग में थे। अब वो सफारी पार्क पहले PPP मॉडल पे जाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल रीज़न से वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया। तो हमारी जो माननीय स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने उस पार्टनर एजेंसी से इस साल वो प्रोजेक्ट रिटर्न लिया है। अब हम उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूँ कि उस प्रोजेक्ट का एक बेसिक फेज़ आई वुड से इफ़ नॉट कंप्लीट फेज़ 1 बट अ पार्ट ऑफ फेज़ 1 जो है वो नेक्स्ट ईयर तक हम लोगों को वहाँ खोल के देख सकते हैं। तो एक सफारी पार्क जैसी का एक प्रोजेक्ट भी बड़ौदा शहर को हम देने के प्लानिंग में है और उस हिसाब से जैसे ही हमें ऊपर से उसका पूरा अथॉरिटी सपोर्ट मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा ऑलमोस्ट किक स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर हम इस प्रोजेक्ट को शायद से लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर तक हम ओपन कर पाएंगे। नए पशु पक्षियों को लाने की कोई योजना, क्योंकि हमेशा नए पशु पक्षी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं? अभी जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पिछले साल हमारा एक यंग लायन की एक डेथ हुई थी, तो नए लायंस लाने की हमारी पहल चल रही है। इसके लिए काफ़ी प्रोसीजर रहता है, काफ़ी पेपर वर्क रहता है, सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी से अप्रूवल्स रहते हैं। तो काफ़ी ज़ूज़ के साथ हमारे एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम्स अभी पाइपलाइन में है। तो नए एनिमल्स खास करके लाने का हमारा जो प्लानिंग है विच इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस, जैसे ही इसमें सीजरे की अप्रूवल आती है तो वी कैन गिव अ डिक्लेरेशन कि हाँ ये
चीज़ें नई जू में आ रही है। बट उसके लिए जो जू टू जू प्रोसेस जो चल रहा है वो हमारा बड़ौदा इंडिया के ऑलमोस्ट 4-5 जूस के साथ चल रहा है कि नए जानवर हम लाएं और नए जानवर हम लोगों को दिखा पाए। उसी साथ में जैसे मैंने कहा कि जो एवियरी है उसमें हम नेक्स्ट ईयर नए बर्ड्स और लाना चाहेंगे। एग्जॉटिक बर्ड्स जो है वो हम ऑथोराइज्ड डीलर्स के पास से हम परचेज़ कर सकते हैं, तो वो करने का भी हमारा प्लानिंग है। लास्ट ईयर परचेज़ किए वाले बर्ड्स में से काफ़ी वैरायटीज़ अब ब्रीड करने लगी है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो नंबर्स भी हमारे पास अच्छे हो रहे हैं। सयाजी बाग को अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ भी हमें और सुविधाएं देखने मिल सकती है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।